ان ٹھیک کو ہے، بیچ ابھی میں لانا جیسے ہوگا، آپ نے بڑی ریجنل اہم بات کی آرکیٹیکچر تھی کہ اسٹیبلش پاکستان میں کرنا اس ٹائم ایک یکساں پالیسی، ایک کہہ رہے کہ تمام سٹیک ہولڈر ون پیج پہ That ایک has to ایجنڈے be پہ there. یک One زبان ہو کر nation, اس one ٹائم نظر آ narrative, رہے one ہیں۔ policy. شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شفیع صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ فرنٹ لائن صوبہ ہے، ویسے ٹیررزم سے سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا اور ابھی بھی ایک بڑے بارڈر ایریا آپ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی کیا تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے شفیع بھائی اس بات میں کہ یہ جو طالبان رجیم ہے ان سے کہیں مذاکرات کیے جائیں یا ان کے لیے ہلکا سا بھی نرم گوشہ رکھا جائے یا ان سے ہلکی سی بھی کوئی خیر کی توقع کی جا سکے؟ سب سے پہلے عادل صاحب آپ کا شکریہ۔ پاکستان کی ایک انچ کی حفاظت سب کا قومی فریضہ ہے۔ جس طریقے سے وہاں سے جرحیت ہوئی اس کا بھرپور جواب دیا گیا اور جواب دینا بھی چاہیے۔ جہاں تک ڈائیلاگز کی بات آپ نے کی تو میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو ایک ویکیوم تھا، جو ایک سپیس کریٹ کی گئی تھی سفارتی تعلقات افغانستان کے ساتھ، وہ اس طرح اس نہج پہ چیزوں کو نہیں لے کے جایا جا سکا جہاں پہ جانا چاہیے تھا۔ 2 سال سے وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا۔ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہم نے بار بار کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ، پاکستان گورنمنٹ نے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ استنبول میں بھی ایک میٹنگ کی، اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ان کے ساتھ ایک وہاں پہ بھی ایک نشست وہاں سے ہوئی۔ لیکن وہ چیزیں جو 2 سال سے جو ویکیوم وہاں پہ کریٹ تھا، سفارتی تعلقات اس طرح بحال نہیں تھے، تو ان چیزوں کی وجہ سے آج جو وہاں پہ حالات ہے یہ آپ کے سامنے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستانی فورسز اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں سے جو جارحیت ہوئی اس کا جواب دیا گیا، تمام قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جہاں تک ڈائیلاگز کی بات ہے تو ہم دیکھیں ہمسایوں ملک کے ساتھ دونوں پھر اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک کے ساتھ پھر ابھی بھی مطلب چیزوں کو بہتر طریقے سے ابھی بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ ٹیبل پہ ہی باتوں کو اینڈ پہ آپ نے بیٹھنا ہوگا۔ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہاں بار تحریک انصاف نے کی، قبائلی عمائدین کو استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جرگے کی صورت میں یا بات چیت کے ذریعے ہم کسی بہتر حل کی طرف جا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات چیت کے تو کئی ادوار ہوئے، مطلب وہ دوحہ میں ہم نے دیکھ لیا، پھر ہم نے ترکیے میں دیکھ لیا، پھر سعودی جو ہے وہ بیک چینل سے سفارتکاری کرتے رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلا تو نہیں۔ ہم تو صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ مذاکرات کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ایک مطالبہ تھا ریاست پاکستان کا کہ افغان جو سرزمین ہے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی شیورٹی نہیں دے پایا ہمیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی کی سرزمین بھی کسی کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک افغان سرزمین کی بات ہے تو بالکل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اس بار جارحیت کا جو تھا وہ سٹارٹ بھی انہوں نے کیا ہے، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایک انچ کی پاکستانی سرزمین کی حفاظت کرنا ہم سب کی قومی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ لیکن میں صرف پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں عادل نظامی صاحب، کہ پچھلے 2 سال میں جو ہماری سفارتی تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ وہ اس نہج پہ نہیں تھے جس نہج پہ ہونے چاہیے تھے۔ اگر وہ تعلقات پچھلے 2 سال میں کچھ بہتر ہوتے تو چیزیں یہاں تک نہ پہنچتی۔ ابھی آغاز انہوں نے کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نہ طاقت میں ہمارا مقابلہ افغانستان کر سکتا ہے، اور جہاں تک ہماری سرحد و علاقوں کی بات ہے تو اس کو بھی ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جان و مال لوگوں کا تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پہ تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تمام اداروں سے رابطوں میں ہے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی تو اس کا کوئک رسپانس دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حماد حسن صاحب، ایک تو مذاکرات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کئی دور ہوئے، کیا اس بار جو اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے خود سے بات کی کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ اب کیا ٹون بدل گئی ہے اور ابھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کنسٹرکٹیو کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی شفیع نے جو بات کی کہ 2 سال میں ان کے ساتھ تو کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب مسلسل جاتے رہے، افغانستان میں جو ایمبیسڈر رہے افغان امور کے ماہر ہیں محمد صادق صاحب، وہ بار بار جاتے رہے، سعودی عرب کو انگیج کیا، دوحہ میں مذاکرات کیے، استنبول میں مذاکرات کیے، تو پھر اور کیا چاہیے؟ لیکن چونکہ وہ بات کرتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو ان کا بات کرتے مکر جاتے ہیں، ہمیشہ سے ایسے کیا۔ ایک بات اور بھی واضح ہو گئی، یعنی افغانستان کے اندر دیکھے تو اس جنگ کے دوران افغانستان ٹکڑوں میں بٹا نظر آ رہا ہے، یعنی عوام طالبان رجیم کے مخالف ہیں، شمالی اتحاد والے گروپس جو ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور ملیٹنٹس ہیں وہ ان کے مخالف ہیں،
पूरी दुनिया उनकी मुखालिफ है, लेकिन पाकिस्तान में आपको मुखालिफत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। PTI के रिजर्वेशंस हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी जो मुंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनका बयान आता है कि मैं अपने मुल्क और अपनी फ़ौज और अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ। जब वो सवाल हम पूछते हैं तो उस पर बड़ा मुस्बित रद्द अमल आता है कि ये पाकिस्तान है, ये फ़ौज है, ये सबका है। तो एक बड़ा मुस्बित और बहुत जामे तासुर इससे आया है। अब आते हैं तालिबान की तरफ। तालिबान जब किसी को जवाबदेह ही नहीं है, जब वो यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जब वो अपने मुल्क अपने हमसाए पाकिस्तान में रोज़ रोज़ दहशतगर्दी कर रहे हैं, जब वो ताजिकिस्तान के अंदर जाकर हमले करते हैं, जब वो चीनी इंजीनियर्स को मारते हैं, जब वो ईरानी फ़ौजियों पर फायरिंग करते हैं, जब वो अपने लोगों को यरगमाल बनाते हैं, जब वो स्कूलों को बमों से उड़ाते हैं, जब वो अपने मुखालिफिन को मलियामीट कर देते हैं, उनके साथ क्या बात की जाए? यानी इस में कोई लॉजिक, कोई मंतिक दलील दिखाई मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, 6 हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान ये के, तमाम सारे के सारे तंग हैं। ठीक है जनरल साहब, ये सफारती हल, जाहिद साहब से सफारती हल, अभी मतलब कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आया है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। तो अभी क्या मतलब आप जो पाकिस्तान ने जिस तरह का कहने के स्ट्राइक किया है, जिस तरह वहाँ पे अपने अहदाफ को निशाना बनाया है, तो उनको नज़र आ रहा है कि अगर मामला यूं ही चले तो शायद फिर वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 2-3 चीजें हैं निजामी साहब। पहली चीज तो हमें थोड़ा सा ना अपने किसी चीज को ब्लर नहीं करना। हमने टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना है, भाई को भाई कहना है। मैं विद ऑल बाय रिस्पेक्ट मैं शफी भाई से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ना थोड़ी सी इसको कंफ्यूजन को दूर करने की बहुत सख्त जरूरत है, और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं वहां पे, हमारे साहब भी वहां पे बैठे हुए हैं, हमने वो बाजोड़ शाजोड़ लड़ा हुआ है, हम बड़े अच्छी तरह तरीकों को जानते हैं। टेररिस्ट को टेररिस्ट वाले उसी में रखे। अफगानिस्तान इज आवर ब्रदरली कंट्री। जो एक आम अफगानी पिस रहा है, उसका दर्द हमें शायद अफगानिस्तान की लीडरशिप से ज्यादा, हमने वॉर देखी हुई है, हमने इन लोगों की प्लाइट देखी है। ये 50 लाख हम कहते हैं ना, हमने इनके मेहमान रहे, वो इनकी प्लाइट भी होती है। ये जिस ज़हनी कर्ब से गुजरता है एक महाजिर, उसको भी हम ज़हन में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ी खुशी से यहाँ पे रह रहे होंगे, उन्होंने भी बहुत चीजें काटी, आज उनको वापस जाना पड़ गया। हमने इसी अफगानिस्तान का वो जकी बच्चा जो लैंडिंग गियर के साथ निकला था 21 में C-17 के साथ कम्बैट एयरक्राफ्ट जो यूएस का, वो इसलिए चला गया था कि जी मैं यहाँ निक्कर पहन के फुटबॉल नहीं खेल सकूं। तो उनकी फ्लाइट है, वो ब्रदरली होंगे, उनके लिए हमने बहुत। लेकिन टेररिस्ट को इसलिए टेररिस्ट खाने में रख के आप पॉलिसी जब मुरतब करेंगे तो फिर आप यू आर गोइंग समवेयर। डायलॉग से कोई भी इनकार नहीं कर रहा, बट इस वक्त प्रिसीजन, पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, प्रिसीजन के साथ हमने मिलिट्री का इस्तेमाल करना है। अगर पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होगी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, तो मिलिट्री का जितने मर्जी ऑपरेशन कर ले, जो मर्जी कर ले, आप क्योस ही जन्म लेगा और कोई चीज जन्म नहीं ले सकती। तो लेट देयर बी नो डाउट, हर एक को अपनी अपनी जगह पे रखे। तालिबान की ये मौजूदा हुकूमत इज नॉट ऑल इंक्लूसिव हुकूमत, और ना ये अफगानिस्तान की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है, न पख्तून की रवायात को रिफ्लेक्ट करती है, ना ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है, ना ये कोई किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इनको उसी तरीके से डील किया जाए। टाइम लेना चाहते हैं इस वक्त डायलॉग की बात करके, ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड। पाकिस्तान को बहुत कॉन्शियस आगे बढ़ना होगा। स्पॉयलर्स आर इफेक्टिव। जो पैसा दिया हुआ है, जिस तरीके से नेतन्याहू की और मोदी साहब की वहां पे स्पीचेस हुई हैं, और उससे अभी भी अगर हमें अंदाजा नहीं है, तो आई थिंक फिर हमें एज अ कॉम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हमारा फेलियर होगा। हर चीज को अपनी जगह पे रख के हमें पॉलिसी मुरतब करनी होगी। डायलॉग से कोई इनकार ही नहीं कर रहा, लेकिन डायलॉग उनसे होगा जो अफगानिस्तान की फिर नुमाइंदगी करके फिर अफगानिस्तान के लिए पीस ढूंढे। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन ही पीस है। अगर पीस हो जाता है तो वो दे विल हैव टू बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एक वॉर इकोनॉमी उनको कहने के सूट करती है, डॉलर्स के बदले उन्होंने सारे मामला चल रहे हैं, हुकूमत उन्होंने इस तरह चलानी है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, फिर शफी जान साहब से इसका एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सब ब्रेक से पहले जनरल जाहिद साहब ने कुछ सवालात रेस किए हैं। शफी जान साहब आप इसका जवाब दें, फिर मैं अब्दुल्ला भाई के साथ जाता हूँ। वो कहते हैं दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द है, उसके साथ तो किसी किस्म का मुज़ाकरात, उसे क्या मुज़ाकरात करेंगे, मतलब उसे क्या बातचीत हो सकती है। और इस टाइम जो वहाँ पर एक अफगानिस्तान में एक रजीम बैठी हुई है वो भी काबज़ीन है, उनसे क्या वैसे क्या बात की जाए?
देखिए आदिल साहब, जो दहशतगर्द है वो तो दहशतगर्द है, जो आपके खिलाफ है दहशतगर्दी कर रहा है, जो आपकी सरजमीन पे दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है, तो उससे तो कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जो बात करने का मेरा जो मकसद था वो मैं अफगान गवर्नमेंट की तरफ मेरा इशारा था कि पिछले 2 साल में उस तरीके से अफगान गवर्नमेंट को एंगेज नहीं किया गया जिस तरीके से एंगेज करना चाहिए था। जहां तक इस वक्त की शफी भाई बात क्या है तो करते, इस शफी वक्त भाई तो थोड़ा सारी सी को कौम एक एक्सप्लेन पेज कर पे दें है। हमारी आसानी के लिए पाकिस्तान भी। की हमें एक तो नजर आ रहा है कि दोहा में भी जाकर कई दौर हुए मुज़ाकरात के, टर्की में भी जाकर फिर डेलीगेशन उठकर एयरपोर्ट गया, फिर उनको वापस बुला लिया, फिर उसके बाद दोबारा एक डेलीगेशन जाता है, फिर सऊदीज बीच में आ जाते हैं, फिर मतलब क्या क्या करें, किस तरह एंगेज करते हैं वैसे इनको? देखिए, जहाँ तक दोहा में और इस्तांबुल की बात है या फिर इस्लामाबाद के मीटिंग की बात है, तो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर थे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लूप में नहीं लिया गया। यहाँ पे जो हमारे कबायली अबाइदीन है, एक जिरगा सिस्टम है, हमारे साहब बेहतर जानते हैं, उनको लूप में नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ के डायनामिक्स और थोड़े से चेंज है। अगर इन लोगों को लूप में लिया जाता, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाता, तो शायद मे बी कि ये जो रिजल्ट थे वो बेहतर हो जाते, क्योंकि अब हमने अमन की तरफ ही जाना है। तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के बाद, देखिए मैंने शुरू में कह दिया कि अफगानिस्तान की कोई मुकाबला नहीं है, ताकत में वो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती। और जिस तरीके से जवाब दिया गया, बेहतरीन जवाब दिया गया। तमाम कौम इस वक्त एक पेज पे है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन द एंड ऑफ द डे आपने टेबल टॉक के जरिए ही बात करनी है, तो टेबल टॉक के लिए मौसर चीजों का अगर पहले इस्तेमाल किया जाता तो वो बेहतर होता। चले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने सुन लिया, वो कहती जी पॉलिसीज़ में हमारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहने के नकाइस रह गए। अगर हम अंदरूने खाना चीज़ों को पहले मैनेज करते, फिर जाके डायलॉग करते, तो शायद उसके कुछ बेहतर नताइज निकल सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लाया जाता, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर साथ आए थे? क्या जब वहाँ ये दोहा में मुज़ाकरात हुए, अंकारा में मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में हुए और फिर इसी तरीके से चाइना के अंदर हुए, रशिया के अंदर 5 ममालिक बैठे, तो उसके अंदर फिर अफगानिस्तान के तालिबान लाए थे बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को, ताजिक आए थे, उसके अंदर बाकी तमाम कौमियत आई थी, तमाम जो दीगर उस्ताद अब्दुल रब रसूल सयाफ आए थे, या मौलवी नबी मोहम्मदी की जो है वो पार्टी की वहाँ रिप्रेजेंटेशन थी, या वहाँ अहमद मसूद की रिप्रेजेंटेशन थी, क्या वहाँ जो है वो यूनुस खालिस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन थी। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, और फिर क्या हम अफगानिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे मुसल्लत तालिबान रिजीम है, क्या हम उसको टेररिस्ट समझते भी हैं या नहीं समझते? क्योंकि हमें ये भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या वो टेररिस्ट हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं उनको टेररिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर क्या टीटीपी के अंदर तमाम टेररिस्ट हैं, या उनके अंदर भी कोई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि टेररिस्ट हैं और कुछ लोग नहीं होंगे टेररिस्ट? मतलब कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैं तो उन सबको टेररिस्ट मानता हूँ, क्योंकि जो दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, अबैटर हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, वेल विशर्स हैं, या उनको जो है वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट करते हैं, आई बिलीव देम कि वो जो ज़ाहिर है जो एक इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और पाकिस्तान का ये जो अभी मुज़ाकरात है, आई डोंट थिंक कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं समझता हूँ मुज़ाकरात जरूर होंगे, लेकिन उस टाइम पे होंगे जब उनको हम अच्छी तरीके से क्रिपल करेंगे। जब तक कि हम उनको क्रिपल नहीं करते, आप देख लीजिए, आपके साथ तो मेरी आदिल भाई बात भी हुई थी कि मैंने आपको बताया था कि ये इनका तरीका कार है कि ये जब एकदम मार पड़ती है, उसके बाद ये थोड़ा सा जो है वो रेस्ट लेने के लिए जो है सफेद झंडा लहरा देते हैं, उसके बाद जो है वो ये दोबारा से रीग्रुपिंग करते हैं, अपने आप को दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और अपना दाम बढ़ाते हैं, और इन्हीं तमाम जो ममालिक हैं इनसे जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं उनसे पैसे पकड़ते हैं और दोबारा तश्कीलें देते हैं। इस टाइम पे जो 20 से 23 हजार दहशतगर्द बैठे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा जो है वो इस टाइम पे गैर मुल्की हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, रूसी वजारत खारजा कह रही है। अब वो लोग जितनी ये रिपोर्ट के अंदर जो कह रहे हैं, वो जिसके अंदर 7,000 के करीब टीटीपी के लोग हैं, अब क्या मुज़ाकरात उनके साथ करते हैं? आप मुझे बताएं। मुज़ाकरात किए थे ना हमने, माजी के अंदर कोशिश की थी टीटीपी के मुज़ाकरात, नूर वली मसूद ग्रुप को जो है, जो तकरीबन 680 लोग उसके अंदर शामिल थे, एक हफ्ते के अंदर हमने उसको 7,800 के ऊपर ले गए थे। तो ये भी हमारे एक अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ
हूं देखिए कि हमें जो है मुज़ाकरात तो पहले हमने वो सूफी मोहम्मद वाला टाइम हमने सवात में अपने कवानीन भी तब्दील कर दिए, क्या कुछ नहीं माना, लेकिन वहाँ पे भी उसका क्या नताइज निकले, किस तरह फिर वहाँ पे इलाके उन्होंने कैप्चर किया, किस तरह बाद में फ़ौज पाकिस्तान ने दोबारा से कार्रवाई करके वापस लिए। हमाद भाई, एक तो नरम गोशा भी अगर कोई दहशत गर्द के लिए रखता है ना, तो मेरी नज़र में तो वो भी दहशत गर्द है, अगर कोई नरम गोशा भी रखता है। अब ये जो तालिबान है, TTP के जो लोग हैं, ये किसकी बैत किए हुए वहाँ पे, किसकी बैत के नीचे वहाँ पर मौजूद हैं? क्यों इनके खिलाफ जो TTA कार्रवाई करने के लिए राज़ी नहीं होती कि जनाब हमारी बैत में हमारे लोग हैं, तो फिर कौन सा नरम गोशा आ गया इनके लिए? देखिए, कभी हमने सुना कि हाफिज़ गुल बहादुर TTP किसी भी तंजीम की जानिब से मुल्ला हेबतुल्लाह खूनज़ादे या तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ कोई बयान आया हो? कभी हमने देखा कि उन्होंने जाके उनके किसी ठिकाने को हिट किया हो? कभी हमने देखा कि हेबतुल्लाह खूनज़ादे कंदहार शूरा या हक्कानी ग्रुप की तरफ से इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई हो? इसी जनूबी रियासतों में, इसी पक्तिया में, पक्तिका में, खोस्त में, निगरार में, आगे हिलमन तक, यहाँ पर हक्कानियों के काफ़ी असर रसूख है, बड़े बड़े मदारिस भी हैं, यहीं पे गुल बहादुर बैठा हुआ है। क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की इन लोगों ने? एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की इक़्तिदार के लिए, दौलत के लिए, स्मगलिंग के मामलात के लिए, लेकिन जब ये मामला आता है तो फिर कहीं भी हमें कार्रवाई दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है, ये एक वाज़ेह सबूत है कि ये आपस में मिले हुए हैं। दूसरी बात ये कि ये धोखा के झूठ कितना बोलते हैं। अभी 1 साल पहले पुलिस के सरबराह मौलवी सईद, उसने एक पासिंग आउट में हेबतुल्लाह अखुनज़ादे का पैगाम पढ़ाया और कहा कि हेबतुल्लाह अखुनज़ादे का पैगाम है कि अगर यहाँ से कोई दहशतगर्द जाकर हमसाया मुल्क में दहशतगर्दी करे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मुल्क में उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको मुल्क से निकाल देंगे। लेकिन क्या उस 1 साल के बाद बनू वाक़यात नहीं हुए, बाजवड़ वाक़यात नहीं हुए, वज़ीरिस्तान डेरा इस्माइल ख़ान लकी मरवत वाक़यात नहीं हुए? क्या फ़ौजियों पुलिस पर हमले नहीं हुए? क्या सिविलियन के घरों तक, मस्जिदों पर हमले नहीं हुए? जब ये बयान आपने खुद दिया था तो फिर उस बयान की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों से मुसलसल? देखिए, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, वो उनके साथ मिले हुए हैं। आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ESPR ब्रीफिंग में कि मास्टर प्रॉक्सीज़, तो ये वाकई मास्टर प्रॉक्सीज़ है कि उनकी पुश्त पर ये लोग बैठे हुए हैं। और इनके पुश्त पर कौन है? इनकी पुश्त पर इंडिया है। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अभी इसराइल के दौरे में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने तो हेबतुल्लाह खूनज़ादे को माई फ्रेंड हेबतुल्लाह कहा, और फिर उसी तकरीर को नेतन्याहू ने भी दोहराया। तो ये डांडे कहाँ तक मिलते हैं, और इससे निकलता क्या है पाकिस्तान के अंदर? अमीर मुत्तकी किस कैपिटल में मौजूद थे जब लास्ट टाइम पूरा मामला हुआ है? जो कशीदगी थी वो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद थे जब पूरी कशीदा आपने सूरत हाल देखी।